CLAT 2026 was the most unexpected paper of the last 5-6 years. And why do I say this is because students को एक particular type of pattern में पेपर को करने की आदत हो गई थी. And this particular paper when they actually saw उनको लगा कि यार ये एकदम से क्या आ गया है. तो आते हुए क्वेश्चन भी हम अच्छे से नहीं कर पाए बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे गिव वो एकदम से सरप्राइज कर गया स्टूडेंट्स को एंड दे कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट. इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग 5 वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दैट ऑल द CLAT 2027 aspirants have to apply in their preparation if they want to crack CLAT 2027. First of all, keep this in mind, CLAT 2027 is going to happen on 6th of December 2026, which is the first Sunday of December, जब पिछले 3-4 साल से इसी दिन पर CLAT हो रहा है. Now let's start from the first very important learning from CLAT 2026, which is from the current affairs section. For the last 2 years, you would have seen that in CLAT 24 and CLAT 25, there were so many questions current affairs में जिनके आंसर्स ही पैसेज में दे रखे थे. So it became quite easy for us to solve और हमें लगा कि यार सिर्फ relevant topics ही आ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा. अब हुआ क्या यहाँ पर? There were certain students who felt कि यार इस particular topic से तो कोई question नहीं बन सकता तो let me leave it. And we were also on the mercy कि at least out of 30 questions we'll find 14-15 questions in the passage. What they changed this time was they did not give a single answer in the passage. Actually इसी तरह का GK सेक्शन हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और CLAT 2020 से लेकर 2023 तक इसी तरह का GK सेक्शन आया भी था. That is the current and that is the actual GK level जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो रेलेवेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स बट वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, आपको वो करके जाना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों ने एयरप्लेन क्रैश वाला टॉपिक नहीं किया बिकॉज उनको लग रहा था कि यार ये न्यूज में तो बहुत है. एवरीबडी नोज व्हेन अहमदाबाद का जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था वो कितना ज्यादा न्यूज में था. एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट फॉर मोर देन अ मंथ. वो एग्जाम में आया बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज इन न्यूज. Always keep this in mind that क्या relevant है क्या नहीं relevant है बहुत subjective चीज है. So always try to do those topics जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं और उनको अच्छे से करो. यहाँ पर out of the 5-6 questions बहुत लोगों के 3-4 questions गलत हुए हैं, particularly in the current affairs section. उसके अलावा there were certain topics जो आपको लगा let's say ठीक है ये पिछले साल आया था. For example SCO summit 2 साल पहले भी आया था, इस साल कोई और समिट करके जाते हैं. People again got stuck, SCO समिट फिर से आ गया. ठीक है, चेस वर्ल्ड कप एग्जाम से 7 दिन पहले ही खत्म हुआ था. पीपल फेल्ट कि अभी तक तो पेपर बन गया होगा तो अभी चेस वर्ल्ड कप के क्वेश्चन कैसे आएंगे. अगेन अ 6-7 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम चेस वर्ल्ड कप. वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. CLAT knows where exactly you would lack and they will exactly test you on that particular point. Please don't skip topics and please keep in mind that you need to have a proper mentor who guides you with respect to this. ठीक है? In our GK question bank, we got out of 28 questions, 17 questions straight away in the question paper. And उसके अलावा भी जो questions थे ना, वो हमने क्लास के quizzes में किए थे या फिर क्लास के lectures में डिस्कस किए थे. That is the level of specialization you need if you are going to prepare for current affairs because ये सबसे बड़ा X factor रहता है for the CLAT examination. Second very important thing to learn is for a lot of people who start very late, लास्ट के 3 महीने में स्टार्ट किया, लास्ट के 2 महीने में स्टार्ट किया और उनको लगता है CLAT तो पिछले 2 साल से आसान ही आ रहा था, I can still crack it. This was an answer from the CLAT consortium to all those kids जिनको लगता था CLAT तो बहुत आसान है, 3 महीने में हो जाएगा. Start early, get used to the pattern, don't take things for granted. A lot of people who were not preparing for A-Lit, उनको लगा एनालिटिकल रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन आएगा जैसे जैसे टैकल कर लेंगे, पूरा सेक्शन ही एनालिटिकल रीजनिंग का आ गया. That is where a lot of people lost marks and they lost hope. क्योंकि एक ऐसा पर्टिकुलर सेट था जहां पर लॉजिकल रीजनिंग वाज सेक्शन 1. आपने पहला ही सेक्शन देखा एंड यू लाइक कि व्हाट द हेल, अब मैं क्या करूं उसके आगे. That is where we got stuck और आगे का पूरा पेपर भी हम बिगाड़ कर आए बिकॉज हमें लग गया कि लॉजिकल रीजनिंग ही खराब हो गया जिससे हमें इतनी उम्मीद थी. राइट? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू मैथ्स. मैथ्स हम लोग बिल्कुल एंड के लिए छोड़ते हैं जो कि ऑब्वियसली गलत चीज है, बट हमें मैथ्स में ये समझ में आ गया है कि जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन 4 में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. इसको अच्छे से करके जाना पड़ेगा बिकॉज मैथ्स के एक पैसेज में द कैलकुलेशन वाज क्वाइट लेंथी. तो इफ यू आर नॉट रेगुलर विद मैथ्स, आप अगर लास्ट में स्टार्ट करते हो तो आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाता बिकॉज वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है. So you have to practice for a considerable period of time to be able to do this particular section also well. क्योंकि हम बोल रहे हैं क्वेश्चन आसान है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन तो फास्ट करना इज अ ड्यूटी ऑफ अ CLAT एस्पिरेंट. आपके पास पूरा साल होता है टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रॉपर्ली, राइट? तो प्लीज स्टार्ट मैथ्स इनिशियली, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट 6 months or let's say last 2-3 months.
to start maths because वहां पर और भी बहुत कुछ रिवीजन के लिए होता है. There are too many things to do at that point in time. Starting a new subject is a different level of stress at that point. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मानना है कि सर गलत हुआ. क्लैट ने कहा था कि दे विल नॉट गिव एनीथिंग इन द लीगल सेक्शन ऑन प्रायर नॉलेज, बट उन्होंने काफी सारे लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दे दिए जिनका पैसेज में भी आंसर नहीं था. यू हैड टू अप्लाई योर ओन माइंड. समथिंग लाइक क्या जीएसटी में नए स्लैब्स आए हैं, कौन सी कमिटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, सर्टेन आर्टिकल्स आल्सो दे आस्क्ड. दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू कीप इन माइंड नाउ, that going forward you can expect questions from legal current affairs. So other than current affairs हम लोग properly legal current affairs भी करेंगे. If you were a 12 minutes to class student, आपको ये पता होगा कि आपने बहुत ज्यादा properly ये सारे questions कर रखे थे and you would have been able to answer all of them because I made you do that. इसलिए मैं आपको बहुत confidence के साथ बोल रहा हूँ कि आपने ये किया होगा, right? Before we move on to the fifth topic, something very important that I want to tell you, which has been a catalyst for a lot of aspirants into the top NLUs, is our latest batch, which is Aagaz for CLAT 2027. आगाज में हमने 3 पर्टिकुलर वेरिएंट्स हैं इस बैच के. इफ यू वांट अ नॉर्मल बैच जहां पर आपको सिर्फ क्लासेस करनी और मॉक्स करने, देन यू कैन टेक द आगाज बेसिक. We have something called the Aagaz Plus, which is a premium batch, which has certain offline offerings as well. जहां पर आपको बुक्स अगर पर्टिकुलरली चाहिए, you need certain mocks at your home as well. तो जो आगाज बेसिक में है वो सारी चीजें तो प्लस में है ही, उसके अलावा इट हैज सर्टेन ऑफलाइन ऑफरिंग्स आल्सो. We have the third variant, which is our elite offering. If you need one-to-one mentorship, if you want group mentorship, है ना, मतलब दोनों ही अवेलेबल है. Obviously, both of them is going to be a part of it. We will explain कि वो किस तरह से आपको हेल्प करती है when you become a part of the batch. We also have something which is an extension to other exams. अगर आप किसी भी CLAT बैच में जाते हो, किसी भी कोचिंग में, तो आपको सिर्फ CLAT और ALET तक का एक्सेस मिलता है. We give you access for SLAT, for MHCET, for CUET. सारे बैचेस is going to be a part of the platinum batch. आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है. You get more than 100 mock tests round the year, तो आपको और कोई टेंशन ही नहीं है कि आपको और कहीं से mock test करने पड़े. We're also going to give you India's first law school readiness program in this. What exactly is law school readiness program? ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स आपको ये नहीं बता पाते कि जब आप क्लैट क्लियर करके किसी अच्छे लेवल पे जाते हो, what do you expect there? आप वहां पर जाकर देखो, so many students in the first year itself, in the first month of the first year itself are taking counseling. ऐसा क्यों हो रहा है? Because it gives you so much mental stress. हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. कोचिंग सेंटर्स ने बस ये बनाया था कि भाई तुम क्लैट क्लियर कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है. That is not how it works. And me, who have experienced 5 years of a top national university, I'm Keshav Malpani. I'm from NLU Jodhpur. I'm the founder of 12 Minutes to CLAT. तो I can clearly tell you when I went in my first year, मेरे को कुछ पता ही नहीं था. मुझे लगा था मैं क्लैट क्लियर हो गया तो मैं तो मतलब हर जगह का शहंशाह हूँ. That is not how it works. So this particular program is going to tell you literally everything: how to start in law school, what are the extracurricular activities, mooting क्या होता है, research कैसे करते हैं, what are the research tools. ChatGPT and Google are not research tool when it comes to law. ठीक है? How do you get internships? What sort of internship should you do? Depend on what you plan to do after that, right? कुछ लोगों को corporate में जाना है, कुछ लोगों को litigation करना है, some people want to pursue judiciary. तो किस तरह की आप internships करोगे is something which is going to be a part of this law school readiness program, जो आपको पहले से ही काफी हद तक तैयार करके भेजेगा. और आप जीरो से अपना लॉ स्कूल स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है 5 साल के लॉ स्कूल में 1 से 1.5 साल समझने में ही लग जाता है. मुझे लग गया था, जेन्युइनली मेरे सारे दोस्तों को लग गया था, बिकॉज वी वर ब्लैंक क्लीन स्लेट के साथ हम लॉ स्कूल में आए थे एंड वी डिड नॉट नो हाउ टू कोप विद इट, राइट? तो जब वो एकेडमिक जो इतना प्रेशर आता है ना कॉलेज का, उसको बहुत आसानी से आप डील कर पाओगे अगर आपने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को कर लिया है तो. Now, fifth very important point that's a learning from CLAT 2026 again is you need to experiment on different types of mocks. हमने देखा कि क्रिटिकल रीजनिंग पिछले 5 सालों से सिर्फ पैसेज बेस्ड आ रहा था, जहां पर इट वाज कोर क्रिटिकल रीजनिंग. लास्ट ईयर वी गॉट 1 पैसेज इन एनालिटिकल रीजनिंग. इस साल सारे पैसेजेस एनालिटिकल रीजनिंग के आ गए और एनालिटिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग मिक्स आई. इट वाज नॉट पैसेज बेस्ड प्रॉपर्ली, राइट? तो इसीलिए यू नीड टू मिक्स एंड मैच दोस पर्टिकुलर मॉक्स. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू 100+ मॉक्स इन आवर प्लैटिनम बैच और 70+ मॉक्स इन आवर प्रीमियम बैच, वी आर गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटिंग देम फॉर यू एवरी नाउ एंड देन, ताकि आप कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाओ इन मॉक के साथ. क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, क्लैट कम्स अप विद अ सरप्राइज और वहां पर अनकंफर्टेबल फील होता है. सो वी डोंट वांट दैट. वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग एंड ट्रेनिंग यू ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ मॉक सो दैट you are completely ready for CLAT 2027. All the best, guys. Prepare well. Start right away without wasting any time. You can always visit 12minutes2clat.com. We'll be very, very happy to guide you with everything you need for the preparation and become the next students who go to the top national universities. All the best.